So hey there, on 30th of September I've received an email. So this video is going to be about that email only. So first I'll read that email aloud to you. I won't mention the name, but here I am with the email. So it starts with, Hi, I came across your channel today and I'm so grateful for the space you have created for people like me to share our stories. I am 23-year-old an English literature postgraduate student and I want to open up about my journey full of challenges, heartbreak and a new spark of hope. I faced depression, a life-changing accident and betrayal from friends, but I'm fighting hard to build a better future. Books have always been my escape. Growing up in a middle class family, I found joy in the pages of novels and poems. My dream was to become a professor teaching English literature and sharing my love for stories like those of Shakespeare and Dostoevsky. I started my postgraduate program. I When I started my postgraduate program, I was thrilled. College was everything. I imagined classroom debates, late nights, study sessions, and friends who made it all feel like a big adventure. I thought I had it all figured out. But life had other plans. About a year ago, I got into a terrible bike accident. It was one of those moments where everything slowed down and then crash. I broke my leg and arm and my body was covered in crust and brushes. The pain was awful, but the recovery was even harder. For 5 or 6 months, I couldn't go to college. I was stuck at home, barely able to move with bandages and doctor visits taking over my life. The accident didn't just break my bones, it broke my spirit. I started battling depression, feeling like my dreams were shipping away. Being from a middle class family, I already felt the pressure to succeed, and now I felt like I was failing everyone, including myself. What made it worse was my friends, or at least the people I thought were my friends. In college, I had a big group I hung out with. We did laugh, share notes, and talk about our big plans. But after the accident, most of them vanished. They didn't call, didn't visit, nothing. Out of those people, only two or three showed up. My friend Priya would come by with snacks and just sit with me, making me laugh when I felt like crying. Samir and Anjali checked on me too, bringing books or just talking to keep my mind off the pain. Those few true friends showed me what real care looked like. But the sting of betrayal from the others still hurts. The accident left me bedridden for months and I had to drop out of a college. My dream of becoming a professor felt like it was gone forever. But I didn't give up. I started focusing on a new goal, preparing for a government exam. It's not what I imagined, but it's a way to build a stable future for myself and my family. I study every day, pouring my energy into exam prep, using my love for literature to stay sharp and focused. It's tough, especially with depression creeping in sometimes, but I keep pushing forward. Your channel gave me the courage to share this. I love how you lift up voices like mine people who feel unseen. I hope my story resonates with someone else out there. Thank you for giving people like me a place to be heard. Warm regards. So this is the email I've received on 30th of September. और इस email को पढ़ने के बाद like for let's say 5 minutes आई वॉज इन अ डीप थिंकिंग मतलब सी हम एक नॉर्मल जनरली बात करते हैं ठीक है टू ऑल द एस्पिरेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो लाइक सी यार अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस ड्रीम कॉलेज के लिए उस ड्रीम जॉब के लिए ठीक है तो लेट्स सी बहुत सारे लोग सभी प्रिपरेशन वाले क्या ड्रीम करते हैं आई टी एन आई टी टॉप कॉलेजेस ओके कुछ ऐसा हो कि हमें वो नहीं कर पाए बट हमें टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा तो भी हम सेटिस्फाई रहेंगे कि चलो जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस ठीक है
कि चलो हमें मिल गया जो हम चाहते थे, ठीक है। बट जब तुम्हें आईआईटी मिल जाए, जब तुम्हें एनआईटी मिल जाए, तुम उसमें ऑलमोस्ट 2 साल उस इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, राइट? और तुम्हें पता है कि बस यार अब ये 2 साल के बाद मैं इस जॉब करूँगा, या मैंने जो अपना ड्रीम था उसे मैं पूरा कर लूँगा, राइट? या कर लूँगी, और बस अब मुझे 2 साल के बाद मेरा ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और मैं बन जाऊँगा जो मैं बनना चाहता था, राइट? बट उस टाइम इंटरवल में तुम्हारे साथ कोई ऐसी चीज़ होती है कि वो ड्रीम तुम्हें ऐसे टच करके बस भाग जाता है। तो क्या फ़ील होता है, लाइक क्या वो बात रहती है? उस टाइम पे तुम्हें तुम्हारे हर स्ट्रगल्स, तुम्हारी इतनी ज़्यादा तुमने पढ़ाई की, इतना तुमने खुद को वो किया, फ़ोर्स किया उस ड्रीम को पाने के लिए। तुमको वो चीज़ मिली, तुमने उस पे मतलब तुमने उसमें जी लिया भी उस लाइफ़ को, बट तुम उसको पूरा ही नहीं कर पाए लास्ट तक। और वो तुम्हें बीच में से बस ऐसा टच करके और चले गया। तो लाइक व्हाट इज़ दिस फीलिंग? ये क्या होता है? एक इंसान तो भाई लाइक टूट ही जाए ना अंदर से कि यार कितनी मेहनत किया उस चीज़ के लिए, मिल गई, अच्छा लगा और बस वो चली गई। पता है, इससे ना मैं लाइक अपने स्कूल लाइफ की तुमको एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि मेरे अभी तक लाइक 3 स्कूल रहे हैं, ओके। नर्सरी से थर्ड तक एक डिफरेंट स्कूल था, देन फोर्थ से फिफ्थ एक डिफरेंट स्कूल था, और सिक्स से आई वॉज इन अ रेसिडेंशियल स्कूल, ओके। तो लाइक फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने एक डिफरेंट स्कूल में लाइक स्कूल से किया है, ठीक है। वो लाइक मेरी सिटी का बेस्ट स्कूल था। तो आई वेंट देयर इन फोर्थ स्टैंडर्ड, और आई वॉज अ ब्राइट चाइल्ड, लाइक एकेडमिक्स में आई वॉज गुड। और वहाँ पे वो सभी बच्चे थे जो वहाँ नर्सरी से लाइक पढ़ाई कर रहे थे। तो फोर्थ में हमारे ही, फिफ्थ वहाँ मैंने स्पेंड किया, और लाइक सिक्स्थ भी वहीं से स्टार्ट हो रहा था, राइट। सो सिक्स्थ में क्या होता है ना, लाइक जनरली स्कूलों में जूनियर सेक्शंस के हेड गर्ल हेड बॉयज़ का वो पूरा बनाते हैं। तो एक दिन रैंडमली मैं सिक्स्थ में थी, एक सर आते हैं और मुझे नेम लेके बुलाते हैं कि आपको प्रिंसिपल ने कॉल किया है। और प्रिंसिपल ऑफिस में सब टीचर्स थे, सब लोग थे, ठीक है। और वहाँ जाके अनाउंस कर दिया, मुझे और एक बंदे को बुला के, हम जूनियर सेक्शन थे ना, तो इतना स्कूल के सामने अनाउंस नहीं किया कि हमने आपको एज अ हेड गर्ल चूज़ कर लिया और आपको एज अ हेड बॉय चूज़ कर लिया है। उस टाइम पे गॉड, लाइक ये मैं सेकंड स्कूल की मेरी स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। उस टाइम पे आई वाज़ लाइक कि यार ये कैसे हो गया? ऑल्दो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, बट वहाँ वो सभी नर्सरी वाले बच्चे थे जो नर्सरी से स्कूल में उन्होंने इतना जर्नी अपना किया है, और बहुत टीचर्स के फेवरेट थे यार। जब मैं फोर्थ में उस स्कूल में गई, टीचर्स इतना अडोर करती थी लाइक बच्चों को, लड़कियों को भी स्पेशली। तो मुझे लगता था यार ये मैम के कितने फेव्स हैं ना, लेकिन नर्सरी से यहाँ आए तो मैम के कितने फेव्स होंगे ना। और वो थे भी। मुझे वहाँ जाके ऐसा शॉक लगा, मैंने कहा यार मुझसे लाइक मेरे मेरे मतलब मेरे बराबर पढ़ाई में जो बच्चे हैं, जो है नर्सरी से रह रहे हैं, जिनको टीचर्स इतना अडोर करते हैं, उनको नहीं चूज़ करके भी 2 साल पहले आई हुई बच्ची को उन्होंने हेड गर्ल कैसे चूज़ कर लिया जूनियर सेक्शन का? आई डोंट नो क्या हुआ, ठीक है, उन्होंने कर लिया। उस दिन आई फेल्ट लाइक कि वाओ, लाइक आई हैव गॉट एवरीथिंग इन माय लाइफ। यार एक 11 साल के बच्चे के लिए क्या होता है, 12 साल के बच्चे के लिए वही होता है यार। जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है। तो एक 12 साल के बच्चे के लिए क्या होता है यार कि उसको उसी के लाइक स्कूल में ऐसा राजा जैसा फ़ील हो, ठीक है। फिर दूसरे दिन असेंबली हुई, असेंबली में अनाउंस हुआ। तो ये लगभग लाइक जुलाई की बात थी, ठीक है। और अगस्त में 15th ऑफ अगस्त को हमारा वो पूरा सेरेमनी होने वाला था, जिसमें हमको बैच सेरेमनी होता था, हमको बैच होता था। तो उसका हमने रिहर्सल स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम उसका रिहर्सल करते थे, रिहर्सल में मतलब बच्चों को बोलते हैं ना कि उस दिन आपको कैसा प्रेजेंट होना है, तो आपको वैसा बोलना है। तो हाय, दिस इज़ मेरा नेम और दिस इज़ द हेड गर्ल ऑफ द जूनियर सेक्शन, ठीक है। तो हमने लाइक पूरा सेरेमनी हमने लाइक 10 दिन पहले से, नॉट 10 दिन पहले से, 20 दिन पहले से वी ऑल स्टार्टेड पूरा प्रिपेयरिंग, हमको पूरा प्रिपेयर करवाया गया, राइट। आप जिस दिन मैं बन गई थी हेड गर्ल, लाइक मैं ऐसे स्कूल अनाउंस हो गई थी हेड गर्ल थी उस दिन से। लाइक हेड गर्ल हेड बॉय तो पूरे पूरे स्कूल के सामने ही खड़े होता है ना जहाँ असेंबली होती है, वहाँ मैं खड़ी रहती थी, कमांड देती थी। लाइक एक वो फील होता था अंदर से कि यार वाह, तुम इतने लोगों के सामने खड़े हो, और वो एक अलग फीलिंग होती है, ठीक है। वो 12 साल के बच्चे में एक अलग फीलिंग होती है। आई ऑल्सो फेल्ट दैट। तो मैंने उसे स्कूल का एग्ज़ाम दिया था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम काइंड ऑफ थिंग होता है, उसके बाद आपको स्कूल में लाइक एडमिशन मिलता है। मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम मैं दे के आई थी, बहुत पहले दे के आई थी उसे स्कूल का, जब मेरा 5th एंडिंग था।
और मैं बहुत चिंता में थी बिकॉज़ मेरे मन में था कि मुझे स्कूल का एग्ज़ाम निकालना है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता था। तो मैं एग्ज़ाम देके बहुत रोई, मैं बहुत अभी हम उस स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है? जिसकी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके 6 से 12 तक मैंने वहाँ किया। मैं बहुत रोई, आई वाज़ लाइक कि यार मेरा मैथ का बहुत गंदा गया, बहुत गंदा गया। मैं बच्ची थी, तो मेरा नहीं होगा इस स्कूल में, ठीक है? फिर मुझे हेड गर्ल बना दिया अपने स्कूल की। फिर मैंने मेरी मम्मा को बोला कि मम्मा आपका भी मेरा सिलेक्शन हो भी जाएगा ना, तो भी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे हेड गर्ल बना दिया। हेड गर्ल में लाइक यार तुमको सब टीचर्स का अटेंशन मिलता है, कोई भी बात हो तो तुमको बुलाया जाता है, या तुमको एक किंग वाली फीलिंग आती है अपने स्कूल में, ठीक है? और अच्छा लगता है यार हेड गर्ल बनना, तुमको रिस्पेक्ट मिलती है, सब मिलता है। तो लाइक हम प्रिपेयर कर ही रहे थे उसके लिए, किसके लिए? 15th ऑफ अगस्त के लिए। और 1st ऑफ अगस्त को मेरा रिज़ल्ट आ गया उस स्कूल का। मैंने डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉप किया, गर्ल्स और जनरल कैटेगरी में फर्स्ट किया। और स्कूल में एडमिशन के लिए वो आ गया कि यू गॉट सेलेक्टेड। यार ये नेबर आउट की आवाज़ है तो प्लीज़ इग्नोर, ठीक है? तो स्कूल का वो आ गया। अब देखो यार, उस 12 साल के बच्चे के लिए वो बैच बहुत ज़रूरी था। मेरा ग्रीन हाउस था स्कूल में, तो वो ग्रीन हाउस के ऊपर हेड गर्ल का नेम और नीचे मेरा नेम, ठीक है? तो आई वाज़ लाइक कि यार मुझे इसको नहीं छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कोई चीज़ मेरे पास से जा रही है, कि अभी तो मेरा सेरेमनी भी नहीं हुआ, चीफ गेस्ट आते हैं, मुझे स्कूल के सामने बैच पहनाते हैं, उसके बाद मैं बैच पहन के दिन भर स्कूल में घूमती पूरा साल, और कितना एन्जॉय होता, कितना सही होता। बट वैसा नहीं हुआ, ठीक है? आई चूज़ कि मैंने इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाला, मैं इस स्कूल जाऊँगी और वहाँ वहाँ रहूँगी, वहाँ सब करूँगी, ठीक है? मुझे स्कूल का ए टू ज़ेड कुछ पता नहीं था, कैसा होता है, क्या होता है। 2 मिनट, या सो आई हुँ, मैं लास्ट डे स्कूल गई अपने वो वाले पुराने वाले, और प्रिंसिपल के पास गई। आई टोल्ड हर कि मैम आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट स्कूल और अब मुझे वहाँ जाना है। और मुझे लिटरली रोना आ गया उस केबिन में। मुझे रोना क्यों आया? बिकॉज़ यार मुझे वो मोमेंट याद था कि यार इसी केबिन में आके एक 12 साल के बच्चे को वो फीलिंग्स आई थी कि यार अब आई एम द किंग ऑफ माय स्कूल, ठीक है? मतलब फिर मुझे बहुत रोना आया। मैम ने अनाउंस किया उनके केबिन से, सब क्लासेस में स्पीकर्स थे कि हमारे बच्चा उस स्कूल में सेलेक्ट हुआ है, ऐसा वैसा। हम तो बहुत प्राउड का मोमेंट है। फिर क्लास चल रही थी हमारी। फिर मेरी क्लास में एक और लड़की थी, उसका ब्लू हाउस था। तो मेरा ग्रीन वाला बैच मैं मतलब देखती थी ना टीचर्स के पास कि यार इनको करना है, तो उस दिन वो सब प्रिपेयर कर रहे थे कौन सा बैच किसको देना है। तो वो ग्रीन कलर उन्होंने उसमें से निकाला, मेरा नाम निकाला, और वो प्रिंट करवा के वो ब्लू का ना नेम अंदर डाल दिया। और मैं वहीं बैठी थी, और फिर वो दोनों टीचर मेरी तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और मैं भी मुस्कुराई रही थी। सो मैं वहाँ से गई, मैंने स्कूल वो छोड़ा, मैं दूसरे स्कूल में गई इन क्लास 6 स्टैंडर्ड। और बहुत होमसिक थी यार, बिकॉज़ घर से बहुत दूर थी, और थी होमसिक, बचपन से थी 6 से। लेकिन आई वाज़ ओनली 12 व्हेन आई वेंट टू दैट स्कूल। उसके बाद स्कूल में टाइम ठीक है, जैसा-तैसा जाता रहा। ऑल्दो आई वाज़ गुड एट एकेडमिक्स ऑल्सो, बट मन में तो वो होम सिकनेस मेरी गई नहीं। बट ठीक है, मैंने वहाँ तक 12th तक अपना स्पेंड किया। तो जब मैं जूनियर सेक्शन में थी ना, और जब मैं उस स्कूल से बाहर आई, सो आई हैड दैट थॉट इन माई सेल्फ कि यार कोई बात नहीं, इस स्कूल में भी 11th में हेड गर्ल हेड बॉय बनते हैं ना, सो मैं भी बन जाऊँगी। मतलब अच्छा करूँगी ना एकेडमिक्स में और बाकी में भी, तो कोई बात नहीं। मैं पुराने स्कूल में नहीं बन पाई तो इसमें बन जाऊँगी। फिर 10th से ठीक हम 11th में आए। 11th में मेरा फर्स्ट लाइक यूटी हुआ, उसमें आई वाज 7th इन माय क्लास, ठीक है? और वो 7th का मुझे वो लग गया कि 7th कैसे आ गई? मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में एक आना था, ठीक है? अब 11th से सब में वो कि यार, हाँ मम्मा, ओके सॉरी फॉर दैट। सो कहाँ थे यार? हुँ, कि इस स्कूल में भी 11th में हम बन जाएँगे, ठीक है? मैं हेड गर्ल बन जाऊँगी। 11th में आई गॉट 7th रैंक इन माय क्लास, तो बुरा लगा उसके लिए कि यार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आना था, वो बन गए। फिर 11th से सबके अंदर वो कि कौन बनेगा, एक एक्साइटमेंट होती है ना बच्चों में। तो एक टीचर थे मेरे फिज़िक्स के, पीजीटी फिज़िक्स थे। सो ही यूज्ड टू कम इन आवर क्लास एवरी डे, लाइक ठीक है, फिज़िक्स ही पढ़ाते थे। तो यार ये बच्चे क्यों आवाज़ कर रहे हैं? तो ही यूज्ड टू कम इन आवर क्लास,
कभी कुछ डिस्कशन होता तो एक बंदे का नाम ले लेते कि हाँ इसको बनाएंगे, और लड़कियों में किसको बनाए तो उसको बना देंगे, ठीक है। ये करीबन 5 बार मेरे साथ इंसिडेंट हो गया कि लड़कियों में किसको बनाए इसको बना देंगे। तो व्हाट हैपेंड कि मेरे मन में जो वो मतलब जो सोई हुई वो हेड गर्ल वाली फीलिंग्स थी वो फिर से जाग गई। तो 11 से मुझे फ़ील होने लगा अब मैं हेड गर्ल बनूँगी, ठीक है। मुझे मतलब ऐसे मतलब मुझे फ़ील होने लगा था कि अब मुझे वो बैच फिर से मिलेगा। इस नए स्कूल में अब मेरा जो वो बचपन वाला दैट अभी वाला जो चाइल्डहुड ड्रीम है, वो अब मैं पूरा कर लूँगी इस स्कूल में, ठीक है। तो मैं उसी सब में थी, और मतलब टीचर्स की मीटिंग हुई एक दिन, ठीक है। अब मेरे मन में ऐसा था कि यार मुझे बना देंगे ये लोग। अब बच्चों में बहुत ज़्यादा वो कि कौन बनेगा। मुझसे छोटे-छोटे बच्चे आके पूछते हैं कि दीदी आप बनोगे क्या? बिकॉज़ हमको दीदी लोगों ने बताया है कि सर ने आपको आके ऐसा बोला तो आप बनोगे। और बच्चे आके पूछते हैं, मतलब रोज़ एक ना एक दिन पूछ ही लेते हैं कि दीदी आप बनने वाले हो ना? हमको पता है। आई वाज़ लाइक अभी तो मुझे नहीं पता। बट मन में तो वो थी ही कि हाँ मैं ही बनूँगी, ठीक है। फिर एक दिन टीचर्स की मीटिंग होती है, फिर टीचर सब बाहर आ गए। एक्साइटमेंट ना मुझे भी जानने का कि क्या है, क्या नहीं है। तो वैसा है कि अनाउंस अ, अनाउंस होना था स्कूल में। फिर मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि मेरा नेम आ जाएगा। फिर एक कोई आते हैं, 3 बच्चों के नाम लेते हैं, 2 बॉयज़ के और 1 लड़की के। वो मैं नहीं थी, कोई और थी। वो 3 बच्चे जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ़िस में और रिटर्न आते हैं और क्लास में तालियाँ स्टार्ट होती हैं। और जब एवरीवन गॉट टू नो अबाउट कि इट्स नॉट मी, तो तालियाँ और ज़ोर से बजती हैं, ठीक है। तीनों आते हैं, एंटर होते हैं, सबको पता चल जाता है ये बंदी लाइक इसको हेड गर्ल बनाएँगे और 2 को मतलब हेड बॉय वाइस और वो बनाएँगे। ठीक है, बात खत्म। फिर लाइक वो तो हमारे क्लास में ही थी, राइट? शी वाज़ ऑल्सो एकेडमिक टॉप। सो लाइक नो ऑफेंस टू एनीवन इन दिस वीडियो, ठीक है। आई जस्ट यूज्ड टू अडोर हर सो मच। मुझे से कोई जेलसी नहीं थी, कुछ नहीं थी। शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन। सो हम गर्ल्स में कुछ बात चल रही थी एंड शी सेड यार मुझे जाके बोल दिया प्रिंसिपल ने बुला के कि आपको बना रहे हैं, तो मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं करना ये सब। तो मैंने प्रिंसिपल को जाके बोल दिया कि सर प्लीज़ मुझे नहीं बनना, आप मुझे मत बनाइए। सो प्रिंसिपल ने बोला नहीं बेटा, आपकी क्लास में से भी बहुत वो करके मतलब बहुत उससे करके आपको चूज़ किया है, तो अब आप इससे प्लीज़ पीछे मत हटो। और उसने वो सब बात, मैं भी वहीं थी, तो वो डिस्कस चल रहा था, तो मैंने भी वो बात सुनी, ठीक है। अब उस टाइम पे आई थॉट कि एक वो इंसान है जिसको वो चीज़ इतनी ज़्यादा चाह है, जो इंसान उस चीज़ को इतना ज़्यादा लेना चाहता है अपनी लाइफ में, पाना चाहता है। एंड अदर इज़ दैट कि जिसको मिला है तो वो चाहते ही नहीं है। तो बेसिकली उसने ज़बरदस्ती उसके लिए हाँ बोल दिया एंड शी बिकेम द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल। रोज़ सुबह असेंबली में वो उसी तरह स्टेज पे खड़ी रहती थी, और मैं बता रही हूँ ना मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस वो पोजीशन से थोड़ा अटैचमेंट था, राइट? शी यूज्ड टू लाइक स्टैंड ओवर दैट स्टेज और वहाँ से सबको कमांड देना, कुछ भी बात हुई तो स्पीच देना और एवरीथिंग, लाइक कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना हो अबाउट स्कूल, अबाउट फेस्टिवल्स। सो शी वॉज ई वन। और वो 2 बंदे तो थे ही जिनको प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता था, राइट? फिर अगेन 15th ऑफ अगस्त आया उस स्कूल में, और लाइक परेड होता है ना, तो उसमें सीनियर सेक्शन के हेड गर्ल हेड बॉय सबसे आगे फ्लैग लेके चलते हैं। उस दिन भी शी वॉज देयर फॉर होल्डिंग दैट फ्लैग। और उस दिन आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट क्राइड ऑन दैट ग्राउंड। बस वो मतलब मुझे नहीं पता था क्या था, मेरा ऐसा मन था ना कि बस मैं भाग के वो फ्लैग खुद ले लूँ। मुझे नहीं पता था क्यों, बस मेरा ऐसा मन था कि बस मैं भागूँ, वो फ्लैग खुद ले लूँ और बस ले लूँ, उसको लेके खड़ी रहूँ, कुछ नहीं करना है, बस वो मेरी चीज़ है। मतलब मुझे ऐसा उससे अटैचमेंट ही ऐसा हो गया था उस हेड गर्ल की पोजीशन से। बिकॉज़ उस बच्चे ने शायद वो देखा था ड्रीम कि यार उसको बनना है। बहुत सारे लोगों को क्रिंज लगेगा कि क्या है, बट ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई डू फील इनसाइड मी, राइट? सो उस दिन
आई क्राइड ऑन दैट ग्राउंड ऑल्सो, मतलब आंसू टपका ही रहेगा। और ठीक है, वो पूरी परेड उस दिन मैंने कैसे की आई डोंट नो। और वो सीन मेरे अंदर अभी तक है कि कोई उस हेड गर्ल के उस फ्लैग को लेके अभी भी चल रहा है उस ग्राउंड में, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन, लिटरली लिटरली इट्स नॉट अबाउट दैट गर्ल जिसको वो मिला, नहीं। इट्स ओनली अबाउट दैट पोजीशन जो कि आई रियली वांटेड पर मुझे नहीं मिली। सो पूरी 11th क्लास, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ना हर एक पॉइंट पे वो बात लाइक लगती थी लाइफ में। मैं जब देखती थी ना किसी भी, अरे यार ये बच्चे बहुत आवाज़ कर, मैं जब भी देखती थी ना लाइक अपने आसपास के कोई भी स्पेशल इवेंट्स हो, हेड गर्ल को बुलाया है या कुछ भी हो, कोई चीफ गेस्ट आया है तो हेड गर्ल को बुलाया है वेलकम के लिए या सब चीज़ें, तो मुझे मेरा वो प्रीवियस स्कूल याद आता था, मुझे वो प्रीवियस मैं याद आती थी। और बताइए वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो एक पोम नहीं है, द रोड नॉट टेकन, राइट के। तो मुझे ना इन दोनों सीन को देख के मुझे वही याद आता है कि या तो मैं उस सॉफ्ट वाले पे चल लेती अपने प्रीवियस स्कूल वाले पे और सब चीज़ें सही होती, बट आई चोज दिस, और यहाँ तो ठीक है सब। तो पूरे 11 दैट यूज टू ट्रिगर मी अ लॉट कि मुझे एक्चुअल में लगा था कि जैसे ईमेल की बात थी ना कि कैसे उनको सब मिल गया, उनका ड्रीम पूरा होने वाला था और फिर वो ड्रीम ही उनके हाथ से चले गया, राइट। तो सेम हैपेंड विथ मी ऑल्सो, मुझे वो लाइक हेड गर्ल वाला पोजीशन मिला अपने प्रीवियस स्कूल में, और वो बच्चा उसमें जीने लगा था, वो बच्चे को वो लगा कि यार ये कंटिन्यू होता जाएगा, ये आगे होता जाएगा, बट इवेंचुअली वो एकदम आया, छू के पूरा महसूस किया और चले गया, मतलब वो ड्रीम, राइट। सो 11th तक वही चीज़, लेकिन 11th में पूरी 11th में जब देखती थी ना कि यार, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि यार ये मेरी जगह, एक 10th की बच्ची थी, उससे मेरा अच्छा कॉन्वर्सेशन होता था। तो शी सेड एक दिन कि आपको नहीं लगता दीदी आप भी डिजर्व करते थे, एंड आई रियली फेल्ट दैट थिंग कि हाँ यार दैट्स ट्रू। मुझे कुछ लाइक कुछ सोर्सेज के थ्रू पता चला, एक 10th में मेरी एक मैम थी मैथ की, उनसे आई हैव शेयर्ड अ डिस्टेंस, रीज़न मुझे नहीं पता, बट आई डोंट नो व्हाई। सो लाइक थ्रू सोर्सेज आई गॉट टू नो अबाउट दैट कि there was my name also in that whole thing, but she denied, या जो भी रहा हो, ठीक है, let's not discuss that here, right? So ये ईमेल को पढ़ के ना मुझे अपनी स्कूल स्टोरी याद आ गई, ठीक है। और व्हाट आई जस्ट वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो इज दैट कि देखो 11th पूरा गया, 12th पूरा गया, अभी आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई है, ठीक है ना, ड्रॉप है 11th 12th में, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, स्कूल में ही थी ना, रेजिडेंशियल स्कूल में थी। सो अभी ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो इतने दिनों के बाद आई फील दैट, ठीक है, मुझे पूरा 11th में स्कूल में कितना बुरा लगा, क्या लगा, कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई हेट नहीं, मुझे किसी से कोई जेलसी नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर एनीवन, ठीक है। तो मैंने उसको अभी तक हील कर लिया। अगर मैं ये ईमेल नहीं पढ़ती तो मतलब मुझे वो चीज़ कभी कभी याद आती है, बट इतना डेप्थ में नहीं आती जितना आ गई, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि जिसने भेजा क्यों भेजा, नहीं। सो इट्स मोर लाइक कि इट्स नेवर, इफ कोई चीज़ आपको आपके साथ हो के चली गई और दैट वाज योर ड्रीम, सो इट्स नेवर लाइक कि दैट वाज द ओनली थिंग लेफ्ट इन योर लाइफ, राइट। जैसे इनके साथ हुआ, ही मेट विद एन एक्सीडेंट और फिर सब चीज़ें हमने देखा ही, राइट। तो जब हम एक्चुअली हमारी लाइफ में फॉल होते हैं ना, तब हम हर स्फेयर से हमें चीज़ें हिट करती हैं, फिर वो लोग हों या कोई भी चीज़ें हों, हमको सब चीज़ें एकदम से ट्रिगर करती रहती हैं, राइट। बट उस टाइम में जो भी लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। अब सी, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि उनके तीन दोस्त का नाम, राइट। तो ये बहुत अलग सी चीज़ है कि आप किसी भी स्ट्रेंजर के सामने अपने तीन दोस्त के नाम आप किसी को शेयर कर रहे हो, राइट। मतलब कितनी बड़ी बात है यार कि you still remember those three friends of yours and you are just actually expressing your feelings towards those three friends in front of a totally a stranger person, right, a stranger. So what I'm trying to convey through this video is that ki, to everyone who has watched this video till now, अगर if you अगर आपने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेस किया है, कुछ है, तो आई गेस वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट एंड जस्ट मूव फर्दर इन आवर लाइफ। जस्ट हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं।
एंड अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को विटनेस करते हैं जिन्हें देख के आपको लगता है कि यार ही और शी मस्ट बी गोइंग थ्रू समथिंग, सो प्लीज़ डोंट थिंक लाइक कि वाई, मतलब मैं क्यों अप्रोच करूँ उसको, या मेरा कैसा अप्रोच होगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा। डोंट जस्ट थिंक लाइक दैट। अभी रिसेंटली मेरी एक उस बहुत पुराने स्कूल की दोस्त है जिसको मैं पहचानती हूँ, तो फ्रेंड नहीं बोलेंगे, जिसको मैं पहचानती हूँ। शी लॉस्ट हर ब्रदर लास्ट ईयर, और उसकी ब्रदर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे शी लॉस्ट हर मदर टू। और मैंने मॉर्निंग में मतलब उसका स्टेटस देखा था कि शी पोस्टेड हर ब्रदर ऑन हर स्टेटस एंड सब वही यार। और इवनिंग में उसकी मम्मा का स्टेटस उसने डाल दिया, मतलब सेम डे आफ्टर जस्ट अ ईयर शी लॉस्ट हर मदर टू। And I don't know what. I text her every day. I just text her every day. I don't like ki I console her. No, it's not like I console her. I text her every day and I like say two things like her ki if you feel anything wrong in your life ना, just remember here I am. वो भले ही उसको कुछ भी समझ लो उस टेक्स्ट को, बट मैं उसको रोज़ भेजती हूँ, मैं उसको रोज़ सेंड करती हूँ कि वेन एवर यू फील टू लो इन योर लाइफ, वेन एवर यू फील लाइक कि क्या हो रहा है, किसी की याद आ रही है, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट टू मी। इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी का वो सहारा बनना चाहती हूँ, नो इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट लाइक कि किसी की लाइफ में किसी को ऐसा फील करवाते रहो कि कोई है उसके साथ। बिकॉज यार एक टाइम के बाद ना, जब तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हारे पास से चले जाते हैं, या तुमको लाइफ बहुत बुरी लगने लगती है, तब तुमको खुद से, तब तुम्हारे पास तुम कुछ नहीं रहते, तुमको ऐसा लगता है कि बस सब चीज़ें बहुत मटेरियलिस्टिक है और बस ख़त्म कर दो तो सब सही है। बिकॉज आई हैव सर्वाइव दिस टू। So, if you have ever encountered someone like this in your life, जिसने बहुत सारी चीज़ें देखी है या कोई बहुत शांत है, और तुम उसको ऐसे इग्नोर करते हो या कुछ भी बोल के ऐसा मानते हो कि यार ये तो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थिंग है, तो हम इससे क्यों बात करें, या क्या है, या हम क्यों करें, हम अपना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो जस्ट डोंट थिंक लाइक दिस। अप्रोच एवरी वन यार, अप्रोच एवरी वन। सबको अप्रोच करो। बी दैट गुड पर्सन इन योर सेल्फ। बी दैट पर्सन की जिसको जिसके बारे में सुन के लोग बोले कि नहीं यार, दैट इज़ अ प्योर पर्सन, ठीक है। बी दैट पर्सन। सब अपनी लाइफ में फॉल होते हैं, ठीक है, बट राइज होना भी तो हमारा ही है ना। हम नहीं होंगे तो कौन करेगा। वो एक सेंटेंस भी तो है यार, बहुत फेमस है कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू डू दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच टू द पर्सन हु हैव सेंड मी दैट ईमेल। बहुत सारा थैंक यू कि आपने आपकी लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर करी, और मैंने इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों को शेयर करी, ताकि हमको भी जानने को मिला कि कैसे लोग स्ट्रगल करके फिर से अराइज होते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू दैट पर्सन हु हैव सेंड मी दैट ईमेल। एंड आई थिंक अब इस वीडियो का एंड करते हैं, राइट। So thank you for stopping by because no one really did. This is the failure.